use air by two methods, via nostril or second is skin, right? So via skin, you can open the skin, the whole skin in the open atmosphere around sunrise or around sunset. Okay, then your cells or pores breathe, breathe air through the atmosphere. And during this time, you wear a cotton minimum clothes, maximum skin exposure to the atmosphere. Then only you can benefit it by air therapy, by air. In the ancient time, there is a area in which, by which the person or Maharanis can see the whole crowd, like fort or killas you see anytime, है ना, you will see. So you can see the Maharani see the whole, like in a small jharokha, a Maharani can see the whole crowd or public, but the public can't see the queen or anything, है ना, any person जो वहां पे खड़ा है उसको नहीं देख सकते. So ये इस तरह बनाए जाते थे कि the person who was standing in front of the jharokha like naked, then the air flows and come towards the person is totally fresh, है ना, purely fresh, and heal throughout your body. So इस तरह का अभी now the culture is different, right? Because we don't have this type of spaces or air right now, or and polluted air also. So we can try best for sunlight. When we take sunlight indirectly, directly we also contact with the air, you know, and we heal ourselves by air, you know. And by this we can also advise, like during in the night you can wear a loosened cotton minimum clothes, so that your internal organs feel free and just clean हो सके, viral और bacterial free हो सके, है ना. Then other portion is breathing, like through breathing. So breathing should be conscious and abdominal. प्राणायाम तो बहुत बाद में आया. सबसे पहले हमारा जो ब्रीदिंग स्टाइल था वो डीप ब्रीदिंग, while you inhale your stomach moving outward and while you exhale your stomach moves inward, है ना. श्वास लेंगे पहले तो आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, जिसे हम सिंपली एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज while you deep inhalation, डायफ्राम नीचे जाएगा, पुश लोअर डाउनवर्ड, सो दैट एब्डोमेन एक्सपेंड आउटवर्ड पोजीशन, बाहर की तरफ आएगा, जैसे चाइल्ड ब्रीदिंग होती है. एंड जब हम एक्सेल करेंगे तो पहले स्टमक इन करेंगे, तो हम पूरा का पूरा एक्सेलेशन करेंगे, ठीक है. सो ये ब्रीदिंग पैटर्न दिन में बहुत बार होना चाहिए. कॉन्शियस डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग की ऑलवेज ट्राई टू फील योर ब्रीदिंग अराउंड योर नॉस्ट्रिल, राइट. बहुत कुछ नहीं है इसमें. तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर थेरेपी, जस्ट अ ब्रीफ एंड फुल एक्सप्लेनेशन. सो सेकेंड इज स्पेस थेरेपी, जो हमने फास्टिंग थेरेपी में कवर किया, राइट. एंड वन मोर स्पेस थेरेपी इज लाइक what you said, universe reflect you as a whole, right. तो this is the spiritual talk also, कि जो आप बोलते हैं, जैसा आप दूसरे के लिए बोलते हैं, वैसा ही यूनिवर्स आपको वापस करता है. The more you give, the more you receive. ये एक फ्रेज में पढ़ते पढ़ते इतना महंगी डॉक्टर हो गई, राइट. मतलब लखनऊ का सबसे महंगा सेटअप है हमारा. सो नेचुरोपैथ चलाना बहुत मुश्किल है, राइट. तो 80,000 to 1 लाख हमारे मिनिमम एक्सपेंसेस है मंथली, राइट. तो इतने बड़े खर्चे पे कभी कभी बहुत प्रेशर होता है. सो आई ऑलवेज चैंट
द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव. आप जितना देंगे, क्योंकि मैं दे क्या रही हूँ, थेरेपिस्ट को दे रही हूँ, है ना. आई गिव थेरेपिस्ट, स्टाफ, तो इतने लोगों का वेलबींग हो रहा है, राइट, मेरे से जुड़े हुए. सो वो आता है बाय गॉड ग्रेस, कहीं से भी आए, है ना. बट स्टिल ये 7 ईयर से ये बहुत बड़ा प्रेशर, इट्स अ ह्यूज प्रेशर कि 80,000 मिनिमम जाता है हमारी जेब से. समटाइम्स पर्सनली भी जाता है. Oh, okay जी. Because For naturopathy staff, for जी, paying monthly salary and maintenance for your clinic. 30,000 is the rent of my clinic, and because the area is 3,000 square feet, and electricity bill, staff, seven staff members, so salary goes up to 35,000 at least, because 8,000 is minimum salary for everyone. So 8,000 plus incentives या extra timings या ऐसा कुछ, and फिर maintenance of geyser because of warm water and mud. Purchasing ये सब, तो oil, तो see costing is much more. It is very difficult to run naturopathy center in day care program. Indoor hospitals are running good, है ना, वो अच्छा कमा रहे हैं, है ना, बिकॉज इंडोर पब्लिक ना आपको एडमिट हो गई और आपने एक अच्छा पैकेज उनको दिया, एक हैंडसम पैकेज, बट वी डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ द आईपीडी, इंडोर हॉस्पिटल. So if a patient, number of patient is increasing according to climate, like March to March to October, it's a good climate for naturopathy treatment, then the maintenance also increases very, बहुत तेजी से बढ़ता है, बिकॉज ऑफ डे केयर प्रोग्राम. जितने आएंगे हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ता है ना, और फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ती हैं. एंड आईपीडी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अपने तरीके से पेशेंट को रख लेते हो पूरे दिन. सो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ स्टाफ और इन सब का सैलरी भी बढ़ता चला जाता है. अगर इनकमिंग आती है तो आउटगोइंग भी एक्सीड करती है, मतलब लाइक ऐसा. चलिए, सो आई ऑलवेज चैट द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव. तो ये काम करता है, लाइक इट्स 100% काम करता है ये. Super जी, super जी. Because in Bangalore, Jindal naturopathy clinic center is there. It's a huge, it's a business kind of thing. Per simple package, it costs around 40 to 50,000 per 10 days. My nearby flat members, dono they jate. So it's a pakka business oriented. But you individually you are running in Lucknow. It's a really admirable. I am admiring you, Ji. Great, Ji. Yes. Great. 10 days 40,000 है, और मेरा पैकेज है, माई पैकेज इज 10 to 12,000 for a month, and I will give I give much more treatment therapies like acupressure, one part of mud therapy, fomentations, 1.5 to 2 hours, like servicing, like much more treatment. If I recommend any person to Jindal or any जगह, तो वो आके बोलते हैं मैडम उससे ज्यादा नॉलेज आपको है, राइट. बस क्या है, वहाँ रेजिडेंशियल है, रहने को मिल रहा है, तो इंसान स्ट्रेस फ्री है, तो उसको ठीक लगता है. एंड बहुत ज्यादा कॉस्टिंग खाने की नहीं आती है. देयर इज नो कॉस्टिंग ऑफ फूड मैनेजमेंट, बिकॉज स्प्राउट्स, सूप, हर्बल टी, जूसेस, लाइक बहुत मान ले तो भी पर डे 200 रुपीज, बहुत मान ले तो भी, है ना, इससे ज्यादा नहीं आती. यस यस. तो चल रहा है, इससे ज्यादा लखनऊ में नहीं देंगे लोग. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हेल्थ. Yes, in Jindal and all, extra, you said everything. Extra is a colon therapy. So they are having one machine. So if patients are capable to do that process, they can clear the large intestine. That is colon therapy. I have also colon hydrotherapy in Lucknow. The cost is 3 lakhs. I have also colon hydrotherapy instrument. Oh, okay, ma'am. Okay. But the problem is ki the person who is come suffering from piles, hemorrhoids, fissure, and they didn't know कि वो सफर कर रहे हैं, they are suffering from this disease,
और rectum is fully filled with fecal matter. So we have to do simple enema, through simple enema and local fermentation on stomach and via diet, approx 15 days, 10 days. Then after we can advise colon hydrotherapy. So मेरे सेंटर में जितना उससे निकलना चाहिए कोलन हाइड्रोथेरेपी से इनकम, वो नहीं निकलती, बिकॉज 50% ऑफ पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल केसेस, दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन. Okay, ma'am. So ये this is the major issue. Okay, ma'am. That's why I don't put the colon hydrotherapy in syllabus. Yes, That's yes. why. Because this is not the normal function. Initially, you can do simple enema, through simple enema, which is much more beneficial than colon hydrotherapy. Colon hydrotherapy. You can commercially use कर सकते हैं 1500 per day charge लेके, but we have very limited patients for this की like again लेना है हमें फायदा हुआ तो very limited. Because right now in today's scenario also the females are very much shy and they didn't agree for doing this, like enema also and colon also. Fear because of the कि वो बाहर नहीं निकली ना, तो उनको इतना लगता है कि ये पता नहीं कौन सी बड़ी चीज हम करने वाले हैं ऐसा, तो वो कन्विंस ही नहीं होते. एंड अगर कन्विंस हो भी जाए तो उनको इतनी बड़ी बड़ी ये प्रॉब्लम्स हमें बाद में दिखती हैं. one of a patient who was suffering from cancer, so family लेकर के आई कि स्टूल नहीं पास हुआ है last from 3-4 days. So मैं भी वहां थी, मैंने I tried to give colon hydrotherapy. So there is a huge blockage, fecal matter just वहीं पर रुका हुआ है, आपको अंदर पियर्स ही नहीं कर पा रहे हम, पूरा हार्ड स्टूल. सो हाउ कैसे हैंडल होगा कोलोन हाइड्रोथेरेपी या नॉर्मल एनिमा? तो पहले हमने उनको एब्डोमेन को हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, मड थेरेपी वगैरह दे करके, वाटर इनटेक पिला के, लेग्जेटिव पिला के थोड़ा लूजन अप करेंगे. जब रेक्टम में थोड़ा स्पेस बनेगा देन वी विल, है ना, द एनिमा ट्यूब कैथेटर और कोलोन विल गो इनसाइड द एनस. राइट ना? तो ये सारी चीजें एक हेल्दी बीइंग के लिए तो बहुत अच्छी हैं, वेट लॉस प्रोग्राम और हेल्थ वाइज. जो डिजीज पे काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ वेलनेस कोच, मैं अपनी जो इमेज है लखनऊ में लास्ट 20 ईयर्स से लाइक वेलनेस कोच नहीं बना पाई. आई एम नॉट गुड वेलनेस कोच, बल्कि मेरा काम वही है, बट क्योंकि फाइलें देखना और डिजीज पे काम करना मेरा पैशन था, तो मेरे पास लोग फाइलें लेके ही आते हैं. राइट, बहुत नॉर्मल लोगों के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम. आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, बट पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय माय टॉक और समथिंग. डिजीज पे लेके आते हैं, तो पॉपुलैरिटी मेरी थोड़ी डिजीज पे ज्यादा है, डिजीज मैनेजमेंट पे ज्यादा है. वेलनेस भी अच्छा काम करती है, बट वेलनेस की शायद फंडामेंटल्स, स्ट्रेटेजी, मार्केट अलग तरीके की है जो मैं कैप्चर नहीं कर पाती. जब तक वो बीमार नहीं होते मेरे यहाँ नहीं आते, जबकि मैं चाहती हूँ कि वो वेलबींग के लिए भी आए. राइट, तो वेलबींग की जो मार्केट है उसमें कोलोन, मेडिसिन, इन सब का अच्छा रोल है और उससे आप अच्छा अर्न करते हैं, है ना. सो इधर ये प्रॉब्लम है. सो हमने एयर थेरेपी एंड वी गो थ्रू फॉर स्पेस थेरेपी, क्लियर, एंड हाइड्रोथेरेपी, है ना. There are a lot of many small therapies which you can implement to the any type of person or disease, and you can get 100% result. But the patience is compulsory, है ना. So the good naturopath वो है जो अच्छी काउंसलिंग कर सके, जो पेशेंस बंधा सके. तुरंत तो फायदा हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो आपको अच्छी काउंसलिंग करनी आनी चाहिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा. पेशेंट को वेट कर मतलब रोकना आना चाहिए. आप पहले दिन से उसको कमिटमेंट मत करो कि ऐसे ऐसे चुटकियों में ठीक हो जाएगा. नहीं, हमारे यहाँ जो चीज चुटकियों में ठीक होती है हम उसका वीडियो कभी नहीं बनाते, बिकॉज वो हमारी ट्रस्ट को जितनी तेजी से बढ़ाएगा ना, उतनी तेजी से ब्रेक कर देगा. वो ज्यादा खतरनाक है ना. जितनी तेजी से आप टॉप पे पहुंचते हैं, अगर बहुत शॉर्टकट लेते हैं तो उतनी तेजी से आप नीचे गिरते हैं.
तो मैं कभी भी ऐसे मैंने दबाया, अरे मैडम तो बिल्कुल गर्दन ठीक हो गई, मैं ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बनाती। बहुत बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स, कि पेशेंट ने मैंने दबाया और उसने कहा अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। आई नो कि ये शॉर्ट मैसेज है, फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में जब अगला आया व्यक्ति इसी एक्सपेक्टेशन से आएगा और नहीं ठीक होगा, क्योंकि बिकॉज ऑल द अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम अदर मैनी और डिजीजेस है ना, लाइक सिंपल नी पेन इज a knee pain or sometimes it's a lumbar pain also, है ना। lumbar pain also creates a 60% covers the knee pain. So in that case there is we can do the treatment on lumbar and knee also. So in 60% population there is a back nerve also which affect the knee pain. सो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक ही तरीके से हर किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आगे आते हैं, आज का टॉपिक है मड थेरेपी। टुमारोज टॉपिक इज एक्यूमेसोथेरेपी, एक मसाज थेरेपी है जो आनी चाहिए। उसका थोड़ा मोड़ा रिफ्लेक्शन कि हम हाथों का कैसे करें, पैरों का कैसे करें, स्पाइन का कैसे करें, वो हम वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड नेचुरोपैथी, द अप्रॉक्स 20 डिजीजेस इन शॉर्ट नेचुरोपैथी का एक पीपीटी है, वो मैं आपको पढ़ दूंगी। तो वो सारा का सारा है कंटेंट वही जो हमारे पास है, जो आप पढ़ चुके हैं, बट एक जगह कंपाइल मिल जाएगा कि सर्वाइकल में कीवर्ड क्या है, कि हम क्या ट्रीटमेंट दें ना। व्हाट इज द ट्रीटमेंट बेस्ट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट बेस्ट फॉर लो बीपी, हाई बीपी, ओबेसिटी, नेचुरोपैथी मैनेजमेंट। तो इतना कंटेंट है जो मैं आज और कल में आपको कवर करूंगी। ओके। देन आफ्टर आपका एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद अगर आप कोई चाहेंगे क्वेरी तो होली के बाद हम लोग एक सेशन रख सकते हैं। कोई अगर कंटेंट पूरा हो गया, एग्जाम दे दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो एक सेशन हम लोग बाद में रख सकते हैं, इंटरएक्टिव सेशन। ओके, बताएं चंद्रमौली जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Ma'am, after completion of this course examination, it's a interview type of how we are. No, written examination. Okay, ma'am. Okay, ma'am. 50 short questions of written examination. Okay, ma'am. Like 50 true false हैं, उसमें fill in the blanks हैं, one word है, like this online. One word. Okay, ma'am. One word questions, 50 questions. हाँ, 50 questions in compile, in which some one words, some fill in the blanks, some true and false, like this. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So after very easy, अगर आपने मेरा ध्यान से सुना है तो आप सब कर पाएंगे। Okay, ma'am. Okay, thank you. So start कर, हाँ बताएं। हिंदी पीडीएफ भी मिल जाएगा जो अभी मिले हैं सारे नोट्स। किसका पीडीएफ? जो नोट्स दिए गए हैं प्रोवाइड है, तो इंग्लिश में है, खैर उससे दिक्कत नहीं है, पढ़ाने के बाद देखता हूँ तो समझ में आता है, पहले देखता हूँ तो नहीं समझ में आता है, बिकॉज हिंदी की टाइपिंग बहुत टफ हो जाती है। तो मैंने कुछ तो कोशिश की है, मैं अगर होंगी मेरे पास तो मैं भेज दूंगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही स्टबर्न थे कि उनको सिर्फ हिंदी आती है, तो मेरा मन भी था कि अपनी मातृभाषा है तो मैंने कोशिश की है, पर ये ज्यादा पढ़ाती हूँ तो ये रनिंग है, कहीं शायद पढ़ी है तो मैं दे दूंगी। वैसे तो आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। सो पहले हम समझते हैं मड थेरेपी। मड थेरेपी कहाँ से आई? इनसाइड अवर मड, ठीक है। वी कैन यूज अ थेरेप्यूटिक मड बाय डिगिंग द मड अप्रॉक्स 3 फीट बिलो द अर्थ, मतलब अपनी ग्राउंड लेवल से 3 फीट नीचे की मड हम थेरेप्यूटिक यूज के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट वी डिग द मड अप्रॉक्स somehow 1 mug 2 mug हमने निकाल ली, एंड लेट इट इन ड्राई सनलाइट में छोड़ दिया लगभग 6 to 8 hours. When it will complete dry, soak it the whole night. एक रात उसको भिगो दिया पानी में, और तब अगले दिन वो हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार है। Mud contains many minerals like sodium, molybdenum, magnesium, iron, copper, जो हमें ट्रेसेस में चाहिए।
ऐसे मिनरल्स हमारी मड में हैं जो वी नीड टू in traces amount, very minute amount, but we don't have any type of medication or food जिससे हम इसको पा सकें, हमारे पास नहीं होता। तो मड एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपनी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। What is the science behind this? When we put the mud on our skin, so via osmosis, सुनिए osmosis, like किशमिश जब हम पानी में डालते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मिनरल्स ट्रेवल करते हैं ना, तभी तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी किशमिश रेजिन्स में मीठापन है वो पानी में आ जाता है। तो मिनरल्स का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू जब हम उसको सोक करते हैं 4-5 घंटे के लिए तो पानी मीठा हो जाता है, राइट। द वाटर इज शुगरी, है ना, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। सो हियर इज ऑल्सो मिनरल्स which the mud contains penetrates through the skin and nourish our body, ठीक है, विद इन 20 to 30 मिनट्स। 20 से 30 मिनट में हमारी स्किन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा हैं और स्किन में मिनरल्स कम है, स्किन मतलब वही स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी को मिनरल रिच करता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, एंड ये किसमें कैसे आते हैं ये मिनरल्स? how the mud contains the minerals? Because of earthworm and many small creatures secretes fecal matter and saliva, right? So the mud contains the variety of nutrient minerals, and second property mud की cooling effect देने की है, the mud always give a cooling effect to a particular organs जहां पे भी हम मड को इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं की भी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करने का पावर रखती है मड, ठीक है। अब इसको हम किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मिनिमम टाइम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट के बीच में हमारी बॉडी को मतलब भर का न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पहले सीख लें, फिर एक पीपीटी के थ्रू हम आपको समझा देंगे, नहीं तो आप पीपीटी खोलेंगे तो व्हेन यू ओपन तो यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। वी हैव अ ट्रे लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द फाइबर ट्रे और एनी टाइप ऑफ ट्रे यू कैन यूज, लाइक सोहन पापड़ी का डिब्बा प्लास्टिक का, राइट, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 1.5 इंचेस एटलीस्ट गहरा हो, फ्लैट ना, है ना, तो हमें थोड़ी सी हेल्दी और मोटी थिक मड बनाने को मिल जाएगा, राइट। सॉरी, नाउ you need to a small cotton cloth, a piece of cotton cloth, just इस पे बिछा दें, and I have this mud, right, जो कि 3 feet below सन में सुखाई हुई, अगर इसमें पेबल्स हैं या कोई भी तिनका है, ट्विग वगैरह, उसको हम निकाल देंगे या फिर छान लेंगे अच्छे से। हमें साफ मड चाहिए, वी नीड टू प्योर मड बिकॉज ऑफ इट क्रिएट्स अ रैशेस और एनीथिंग एल्स टू योर स्किन, सो इट शुड बी प्योर एंड क्लीन। सो देन सोक किया हुआ इसको रात में और सुबह भी ये तैयार है, राइट। सो अभी अगर हम इसको देखें, जैसे अभी इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ मिलेगा तो हम निकाल भी सकते हैं, बट अभी हम लाइक राइट नाउ पढ़ा रहे हैं। सो आप देखेंगे कि ये ऐसी है ना, बहुत गीली है ना, इसकी कंसिस्टेंसी लाइक बहुत गीली नहीं है, बहुत सूखी भी नहीं है, हाँ। रात में व्हेन वी सोक्ड वाटर द होल नाइट, तो यू got this type of mud, so you can put mud on this tray. ½ inches or 1 inches thickness,
ठीक है, 1/2 to 1 inches। तो दैट्स वाई द जो ब्रॉडनेस है ना इसकी गहराई, उस पे आप अच्छे से इसको फिक्स कर पाएंगे। So you can fill this hole. Okay. What is the exact position of applying the mud on stomach? ठीक है, just select the center of navel like hydrotherapy. Center of navel, 4 fingers up, 4 fingers down, 4 left, 4 right. At least minimum area ये cover करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये थोड़ी सी ऐसे गंदी गंदी सी दिख रही है, राइट, ऊंची नीची दिख रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा पानी लिया और इसको ऐसे चिकना कर दिया। इफ यू वांट टू वियर ग्लव्स यू कैन वियर, राइट, यू कैन वियर और यू शुड वियर, इट्स अ गुड हैबिट। और सो यू कैन get now this, okay? So ये दिखने में अच्छी है बिकॉज जब आप इसको सरफेस से टच करेंगे ये है ना, तो ये अच्छा सा फील देगी। वो ऊंची नीची थी, ऐसे ही रख दिया था, तो अभी जब इसको हमने चिकना कर दिया तो अब जब हम बॉडी पे डालेंगे तो आपको, पेशेंट को भी गुड फील होगा, राइट। अब मान लीजिए अब आपको सीखना है ना, प्रैक्टिकल, तो समझना पड़ेगा इसको, हाँ, क्योंकि किसी की बॉडी को अभी ऐसे नहीं खराब कर सकते। So imagine this is the navel, right? अभी ये हमारी क्लास टेबल है, तो इस पे मान लीजिए ये नेवल है, ये मान लीजिए सेंटर हमने नेवल ले लिया, ठीक है। तो अब हम नेवल से 4 फिंगर्स बिलो इस ट्रे को रखेंगे। वी पुट दिस ट्रे बिलो नेवल, 4 फिंगर्स बिलो, नेवल पे नहीं रखेंगे, 4 फिंगर्स बिलो रखेंगे, तो ये नेवल इस पे आ जाएगा। When we fall this, जब हम इसको पलटेंगे तो ये नेवल इस पे आ जाएगा ना। Before this, if a person is lie down straight on this table, so first we put a towel clothes 4 fingers above the navel and one more 4 fingers below the navel in the lower or pant, ना, right, because खराब ना। तो जहां पर हमने यहाँ पर उसको ये लगाया, मान लीजिए, है ना, ये लोअर में लगाया उसका टॉवेल, हाँ, तो टॉवेल पे नेवल से 4 फिंगर्स बिलो हम ऐसे रखेंगे ट्रे को और ऐसे पलट देंगे, राइट। अब जब हम इसको उठाएंगे और इस कपड़े को वापस पलट देंगे, उसका शर्ट भी ऐसे ही आ जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको ढका रहने देंगे तो ये इतनी बढ़िया सी प्लेट आपके नेवल पे है, सेंटर ऑफ नेवल, 4 फिंगर्स अप डाउन। अगर आप इसको उठा के रखते तो नहीं रख पाते, यू कांट डू। आप ऐसा ऊंचा नीचा मत लगा सकते हैं, बट इतनी अच्छी सी बनी हुई आप इसी तरह रख सकते हैं कि ट्रे को पलट दीजिए। विद इन 30 मिनट्स द स्टमक हीट से ये हीट हो चुका होगा, तो जितना लूज ये चिपका हुआ था ये पूरी आप ऐसे ही उठा पाएंगे। ये तो दिस इज द ग्लास, सो एब्जॉर्प्शन नहीं है इसमें, हाँ, तो ये ऐसी की ऐसी है कि चिपकी हुई रहेगी। बट इफ देयर इज अ बॉडी, सो बॉडी हीट से ये पूरा छूट जाता है, तो आप इसको इजीली पूरा ऐसे उठा सकते हैं, है ना, ऐसे पूरी एक साथ उठ जाएगी जब आप पेशेंट पे उठाओगे। और इस मड को हम रीयूज नहीं करते, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस मड को हम रीयूज नहीं करते। इफ वी नीड टू रीयूज, just let it मतलब let it dry in sunlight for 3 to 4 days, then you can soak it overnight, then you reuse। मतलब प्रेफरेबली तो रीयूज नहीं करना है, अगर आपको करना ही पड़े, मान लीजिए ऐसी जगहों पर है जहां पर मड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट मड का कूलिंग इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। जर्म्स तो चले गए, एक बार जब हमने रखा तो जितने न्यूट्रिएंट थे वो बॉडी में पेनिट्रेट कर गए, अब उस मड में नहीं है, बट मड ने जो इनहेरिट किया बॉडी से टॉक्सिन्स,
उसके लिए आप उसको जर्म फ्री करने के लिए सनलाइट में रख सकते हैं। तो मड के न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेंगे अगली बार रखने में, बट हाँ कूलिंग इफेक्ट से आपको जितनी बेनिफिट मिल सकते हैं वो मिलेंगे। So this is for indigestion, constipation, gastritis, acidity, ulcer, ulcerative colitis. We use this kind of mud pack for acidity, ulcers, ulcerative colitis, constipation, एंड फीमेल डिजीजेस, डिस्मेनोरिया वगैरह उसमें भी देते हैं, फीमेल डिजीजेस। नाउ अब हम आते हैं, अभी हम सब गंदा कर ही लें। जब पाइल्स या फिशर है, ब्लीडिंग पाइल्स है ना, एनाल डिसऑर्डर्स में, सो हम एक मड की पोल्टिस बनाते हैं, लाइक वी मेड अ पोल्टिस ऑफ मड। सो लाइक पोल्टिस ऑफ मड, so in this mud should be like ऐसी होनी चाहिए, जैसे क्ले लाइक, जैसे जिससे हम कुछ बनाते हैं ना, तो बहुत लूज नहीं हो सकता वो, लाइक डव। सो इसको हम मेक दिस टाइप ऑफ फिगर, ठीक है। सो we always use the skin of back, knees or foot or stomach like this. If we want to give mud on eyes or genital organs or any open pore, तो we can use a cotton cloth. अभी क्या था, स्किन मड से टच कर रही थी ना, the stomach skin touches directly to the mud, but for anal diseases, for eyes, we never use a direct contact है ना। so that हमने ये बनाया, and we can use a thin marking clothes, thin marking white cloth and put it like this, and now we need a chair or hard stool, put it like this, and the person who is suffering from anal diseases just spread buttocks and ये portion anus पे आना चाहिए, ठीक है। so ऐसे बैठ जाएगा है ना, will sit like this, this is anus। तो anal sphincter and all the nerves and muscles heal through indirect contact है ना। so उसके थ्रू ये heal होता रहेगा। दूसरी बार में हम उसको कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी, हिप बाथ एडवाइस कर सकते हैं, एंड लोअर एब्डोमेन पे भी मड दे सकते हैं। तो अब चारों तरफ से हम उसकी हीलिंग करना शुरू करते हैं, सो देन विल गुड रिजल्ट है ना, वी विल गेट अ गुड रिजल्ट। तो दिस इज फॉर एनाल डिजीजेस, पाइल्स, डिस्मेनोरिया, लाइक एनीथिंग। हाँ, वन मोर, इफ वी नीड टू डू आई मड पैक for eye itching, irritation or tearing kind of, ये तो बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन कि ईचिंग हो रही है ना, कुछ भी हल्का सा इन्फेक्शन हो गया, रेडनेस है, आईसाइट वीक में भी दिस इज वेरी, वी गेट द गुड रिजल्ट, बट द ट्रस्ट होना चाहिए ना? तो उसके लिए वी नीड अ स्मॉल फेयर क्लॉथ, साफ नीट एंड क्लीन क्लॉथ, spread it। इसके लिए हम इस मड को थोड़ा पतला spread it and like so इसको ऐसा हम पतला बिछा लेंगे and fold it, ठीक है। तो अभी इधर से ये आईज पे मड पैक ऐसे रखेंगे, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा हीट लगता है तो आप इस पे हल्का सा पानी स्प्लैश कर दीजिएगा, तो ये इधर भी नमी बनी रहेगी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी का भी हम इसको पेस्ट बना के कपड़े के अंदर लगा के ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके डार्क सर्कल्स, कॉन्सेंट्रेशन,
आईसाइट वीक, ईचिंग, इन सब में बहुत आराम मिलेगा। एंड अगर आप इसको ब्रॉड बनाते हैं, थोड़ा चौड़ा ब्रॉड है ना, थोड़ा डबल, तो फोरहेड भी कवर करता है और ये भी, तो आपका ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट ये सब भी होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। छोटा सा टिप है, बट आप अगर देना शुरू करेंगे तो हमारी क्लिनिक में 3-4 बार में ही पेशेंट कह देता है कि लाइक टीयरिंग में, ईचिंग में, इरिटेशन में बहुत आराम है, वो तो पूरी तरह ठीक ही हो गया। तो आप ये मुल्तानी मिट्टी से भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस मड अवेलेबिलिटी इज वेरी टफ इन टूडेज सिनेरियो। वी कैन ऑल्सो परचेज, है ना, हम परचेज ही करते हैं, वी परचेज दिस मड, लाइक पूरा डाला, होल डाला, एंड 1 बोरी लाइक मैन पावर चाहिए, धूप में डाला, फिर हमने उसको छनवाया, फिर रात में भिगोया, फिर सुबह दिया। लाइक इट्स अ टफ जॉब, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो आप मड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। One more thing, when the person is suffering from depression, anxiety or nervous system disorder, so we can use mud for degenerative purpose. So spread one again cloth. So अभी आइदर हम स्पाइन पे मड को ऐसे ही स्प्लैश कर दें, है ना, ऐसे ही थोड़ी सी जगह पे, और उसको किसी कपड़े से ढक दें। दिस इज द वन वे। एंड सेकेंड इज कि आपने एकदम उसी तरह से अच्छे से एक हाफ पोर्शन में बनाया, थोड़ा सा थिक, अगेन इस पे थोड़ा सा आपने पानी लगा लिया, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अब ये अगर स्पाइन है ना, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, तो थोड़ा साइड में रख के हम इसको ऐसे गिरा देंगे, एकदम सेम टेक्निक। तो अगेन स्पाइन पे खूब अच्छा सा आपका ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे, नेक टू टेल बोन। अगर ये स्मॉल है तो एक और बना लेंगे और फिर नीचे लगा देंगे। सो क्लिनिक में तो हम ऐसा ही देते हैं और बड़ा गुड फील आता है, क्योंकि इसमें चिकनापन आ जाता है ना, स्मूथ, तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। वन मोर थिंग इज, नी पेन में हम मड का लेप कर देते हैं ऐसे और धूप में बिठा देते हैं। तो क्लिनिक पे तो मैं ऐसा नहीं देती, बट समटाइम्स पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, आई कैन एडवाइज वेरी ओपनली लाइक की लेप, मड का लेप, एंड सनलाइट में बैठे आप 20 मिनट्स। सो अपने आप ही जो क्रिस्टल डिपोजिशन है, स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे रिड्यूस ऑन होती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, in skin disease where there is no any kind of crack, कोई भी ऐसे मतलब गहरे घाव नहीं होने चाहिए। जैसे आप डायरेक्ट स्किन पे ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे अगर कटा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उस केस में आप एक्जिमा में जैसे वी कैन गेट अ गुड रिजल्ट इन एक्जिमा, बट इन द ड्राई स्किन इफ वी हैव अ वेरी मतलब कट है, बाउंस है, तो हम उनमें इस कपड़े के ऊपर ही मड दे सकते हैं। जैसे कोई बाउल है, कोई फोड़ा है, एब्सेस, वो फूटना चाह रहा है, नहीं फूट रहा है, बहुत पेनफुल है, तो हम उस मड को इस कपड़े में करके, ठीक है, ऐसे बांध सकते हैं, पर टच नहीं कर रहा, ठीक है, तो भी वो फायदा पहुंचाएगा। तो समटाइम्स ऐसा कर सकते हैं, बट जब आपका घाव खुला हुआ हो, ओपन वाउंड पे नहीं देंगे मड को, कभी भी डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक। सेकेंडली क्या कर सकते हैं, पूरे मड को अभी हमने जो कराया, जैसे हमारे यहाँ क्लिनिक में मार्च टिल अक्टूबर हम एक मड बाथ देते हैं, तो इसको हमने थोड़ा लिक्विफाई कर लिया, थोड़ा गीला कर लिया, और इसमें हनी, रोज वाटर, एलोवेरा जेल फ्रेश निकाल करके और खूब अच्छे से इसको मैशअप कर लिया, और होल बॉडी पूरा लगाया, पूरे क्लोथ्स हटा के, थोड़ी जेनाइटल ऑर्गन्स और आईज छोड़ करके, नोज छोड़ के, हेड टू टो पूरा, so the whole body, and sit in sunlight approx 20 minutes minimum, 20 to 40 minutes. जब पूरा सूख जाए, ड्राई हो जाए, then you can go for bath. And this is dry, so you can use a sponge
एंड स्लाइट पानी डाल डाल के आप उसको थोड़ा रब करेंगे और फिर आप बाथ करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर बाथिंग। जैसे लगता है जैसे हमने कभी नहाया ही नहीं, ऐसा मेरे पेशेंट्स भी बोलते हैं, और वो हस्बैंड वाइफ और फैमिली पूरी बुक करते हैं मड बाथ के लिए। सो हम लाइक देयर इज नो अ फैसिलिटी ऑफ पूल, बिकॉज द प्यूरिफिकेशन पूल is very difficult, either water either mud, because person defecation और यूरिनेशन भी करते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एंड जो जर्म्स आपकी बॉडी के आए वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। इतने बड़े पूल को साफ करना इम्पॉसिबल है, आपने उसी में मड मिलाई पर पूरी मड को पूरा खाली किया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो हमने हमेशा ही यही प्रेफर किया कि बहुत सारा मड आपको, जैसे हाफ किलोस बनाया 500 किलो हाफ ग्राम्स का, तो वो मुल्तानी मिट्टी यू कैन यूज, और यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ मड, पर बहुत ही साफ छनी हुई, तो यू कैन यूज मुल्तानी मिट्टी। इन दिस हनी है, लेमन है, आपका एलोवेरा जेल है, रोज वाटर है, नीम का पानी है, लाइक नीम की पेटल्स को आपने रॉ पीस दिया, ग्राइंड इट एंड पोर इट इन दिस, तो नीम वाटर भी डाला हमने स्किन डिजीज के लिए, एंड देन यू कैन यूज द होल बॉडी, इन योर होल बॉडी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जस्ट again you can dress up like a small nighty, sleeveless or in short skirt like, and sit in sun bath, और देन आफ्टर यू कैन टेक शावर। सो क्या होता है कि जब ड्राई हो जाता है तो हम धीरे धीरे उसको छुड़ाते हैं, और तब जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो एक्चुअली एक एक सेल तक में सिस्टम हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम डेली 1-2 मग पानी डालते हैं और चल जाते हैं, वो कोई बाथिंग थोड़ी है, वो तो इंटरनल तो ठंडक भी नहीं जा पाती है ना, वी कांट फील द इंटरनल कूलनेस। सो आप इसको लेके कभी देखना, घर में भी कर सकते हैं, सो तब आपका क्या आनंद है नहाने का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मड थेरेपी, जस्ट गिव मी 5 मिनट, ठीक है, इसको सब। Okay, ma'am. Please take your own time, ma'am. Okay, Yes. okay, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for your clear-cut explanation with practical way. Thank you, ma'am. Thank you, thank you.
So this is all about mud therapy. ओके, सो पीपीटी आपको फॉरवर्ड करेंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा विद पिक्चर्स, ठीक है। सो अभी बचा हमारे पास एक्यूमेसोथेरेपी। मसाज इज द एंशिएंट वर्ड। जब हम इसको साइंटिफिकली करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। एक्यूमेसोथेरेपी, एक्यू मतलब एक्यूप्रेशर, कुछ रिफ्लेक्शन। यू both are unaware of acupressure or aware or little bit aware? Yes, ma'am. Aware of acupressure. The reflection of our body is in our hands or feet. Okay, so in case of any problem during spinal cord, मतलब in our spinal cord, so we can use a reflection, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। जहां पर हमें कंजेशन है, डिजेनरेशन है, वहां पर हम आइदर गो फॉर मड थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी फॉर नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी, आइदर हॉट एंड कोल्ड, आइदर हॉट, आइदर मड थेरेपी, बट वी डोंट यूज मसाज, ओके, बिकॉज in any pain or discomfort you can use a fasting therapy or any kind of therapy. ये बहुत खूबसूरत बात है कि योग वालों को भी ये समझना चाहिए कि जब बॉडी फीवर में है या प्रॉब्लम में है तो आप उसको रेस्ट कराओ, थेरेप्यूटिक बिहेवियर हो आपका, ना कि एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है। द पर्सन नीड टू टेक रेस्ट via digestive system or mentally, like relax, complete relaxation, and go for therapeutic structure like fermentation, acupressure, massaging is also exert करता है बॉडी को, है ना। मसाज इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो पर्सन खुद नहीं कर सकता तो दूसरा व्यक्ति आप पे करता है। इसीलिए ओल्ड एज में व्यक्ति खुद योगा नहीं कर पा रहा, वॉक नहीं कर पा रहा, तो द काइंड ऑफ अदर पर्सन आपकी बॉडी पे करता है। क्या मोटो है, क्या उसका है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखे, जो हमारा एक्सरसाइज भी करता है। तो मसाज इज द सबसे ऐसी चीज है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है और आपकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो अगर कोई यूथ करता है तो स्किन को नरिश कराने के लिए कर रहा है। इफ ओल्ड एज पर्सन को हम एडवाइस कर रहे हैं तो थेरेप्यूटिकली उसे अच्छा करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डिजीज में हम सबसे पहले फर्मेंटेशन, मड थेरेपी, इन सब का सहारा लेंगे, रेस्ट कराएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे, जितना हल्का डाइट हम उसे प्रेफर कर सकें, ठीक है। एंड मेनली क्या, डिटॉक्स डाइट क्या होती है वो, जितना हम अल्कलाइन फूड दे सकें, रॉ दे सकें, जूसेस, लिक्विड दे सकें और गॉड मेड दे सकें, है ना, मैन मेड नहीं। तो जितना हम लेस कुकिंग पे नॉर्मल हेल्दी चीजों को एडवाइस करेंगे, व्यक्ति उतना ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस, है ना। सो सबसे पहले हाथ में समझे मोटा मोटा, दिस इज थंब, है ना, तो ये हमारा नेक है। एंड ये जो 4 फिंगर्स हैं, ये 2 हमारी लेग्स हैं और ये 2 हमारे आर्म्स हैं, 2 हाथ और 2 पैर, ये हमारा नेक। तो मोटी तौर पे हम किस चीज का इलाज करते हैं, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो हम इस पे मसाज करेंगे, है ना, लाइक दिस। तो जब हम फुल बॉडी मसाज स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम हाथों को 3-4 तरीके से मसाज करें। दिस इज साइंटिफिक फास्टिंग। क्या करें, दीज आर द एनर्जी चैनल्स, 2 उंगलियों के बीच में जो मुलायम हिस्सा है मेटाकार्पल्स और कार्पल्स का, दीज आर द एनर्जी चैनल्स, ठीक है। तो हम इनको ऊपर से नीचे तक ऐसे लाते हैं हाथ को, है ना, थोड़ा ऑयल लगाएं या ड्राई मसाज करें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हम एनर्जी चैनल्स हैं, इनको करने से हमारी बॉडी की वाइटलिटी, वी कैन इंक्रीज अवर वाइटल फोर्स, वाइटलिटी ऑफ बॉडी। सो 5 टाइम्स ऊपर से नीचे हम इसको ऐसे लाएंगे, ठीक है। सेकंड, एक फिंगर को ही हम ग्रिप बना करके, आप भी करो, आप लोग प्रैक्टिस करो दूसरे हाथ से जो मैं बता रही हूं। इसको हमने वी हुक बनाया एक हाथ को, तो दूसरे हाथ को हम ऐसे, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारी उंगलियों के,
ये सारे मूव कर रहे हैं ना, नो नीड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, हो रहा है ना नीचे से ऊपर, प्रेशर भी है और घुमा भी रहे हैं। तो 5 टाइम्स हम ऐसा नीचे से ऊपर लाएंगे, ठीक है, थंब ऑल्सो। तो कितना खुद से ही अच्छा लग रहा है, और अगर हम किसी का करेंगे तो अपना भी हो रहा है, अपना भी भला दूसरे का भी भला, दिस इज गुड फॉर अवरसेल्फ ऑल्सो। तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, बिकॉज आपके पॉइंट्स अपने आप ही दब रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बेनिफिट ना हो एक्यूप्रेशर का। पीछे जब प्रेशर देते हैं तो दोनों साइड से, इधर से भी होना चाहिए या केवल बैक साइड से? नहीं, अभी तो हमने, हाँ ये वाले, हाँ आप आगे भी हाथ को प्रेशर दोगे तो अच्छा है। चैनल्स तो ये हैं, बट आप कुछ इस तरह से हाथ को रखिए कि पीछे भी हम जो थंब ले जा रहे हैं इस पे भी प्रेशर आए और इस पे भी आए, दोनों तरफ से आए, ठीक है। और अगर कोई ऐसे सामने बैठा कर रहा है तो वो जरूर थंब को ऐसे ले जा सकता है। कोई थेरेपिस्ट कर रहा है तब फिर पीछे प्रेशर नहीं आएगा। तो मेन पर्पस है एनर्जी चैनल्स को प्रेशराइज देना, ठीक है। सेकेंड हमने ये बताया। एंड थर्ड स्टेप जो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस पे बुक्स भी हैं बहुत सारी, पार्क जो वो की ट्विस्टिंग थेरेपी, ठीक है। तो ट्विस्टिंग थेरेपी इज कि थंब नेल को साइड में पकड़ा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे नेल को, इसको हमने साइड में पकड़ा है, नेल के साइड में, हाँ, और इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं तेजी से, हाँ, नेल की साइड में पकड़िए, साइड में, यहाँ पे नहीं, यहाँ, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करा है ना, हाँ। तो आप देखेंगे बहुत हद तक जैसे कोई फेंट हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसके नेल्स को लेके ऐसे रब करना शुरू करो, एक को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, बहुत सारी बीमारियों में आपको फायदा महसूस होने लगेगा इमीडिएट। जैसे सर्वाइकल है, आप इस ऐसे ट्विस्ट करो, वैसे तो सर्वाइकल में आपको नेक का ही यूज है, बट अब भी आप सारी भी करोगे ना तो भी आपको फायदा उसमें दिखने लगेगा पेशेंट में, ठीक है। तो यहां से हम मसाज की शुरुआत करेंगे, ठीक। तो 3 स्टेप्स ये जो हाथ में है वैसे ही इस हाथ में है और वैसे ही पैर में है, ठीक। फिर बात आती है लंबर पेन, सर्वाइकल हो गया, यहाँ पे हमने फॉर्मेंटेशन किया और यहाँ का एक्यूप्रेशर किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, हाँ। यहाँ पर हमने इस तरह से मसाज करी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का एरिया वर्टिब्रल यहाँ आई हमारी, ये नेक, ये फेस है, ये अगर नेक है तो ये हमारा फेस है ना, ये फेस है, ये फेस के पीछे का हिस्सा हेड है, ये हमारा थ्रोट है, लाइक दिस इज थ्रोट एंड दिस इज नेक पीछे से, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम तो पीछे है। अगर हाँ टॉन्सिलाइटिस है तो आज ही एक पेशेंट थे तो उनको हमने यहाँ पर काली मिर्च बांध दी, है ना, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर्स ऐसे 3 4 5 रख के बांध दिए और उनको प्रेशर देने को कहा, ठीक है, पट्टी डालना चाहिए, ओके, ओके, हाँ, टेपिंग कर दी उसको, ठीक है। ओके, वेट वेट, जी चंद्रमौली जी, जी आप योगा टीचर जी? जी जी योगा, जी ओके ओके जी। इंडिविजुअली आप टेकिंग योगा क्लासेस डेली? नहीं, डेली नहीं अभी, ऐसे दिल्ली में था तो वहाँ पे वीकली था, संडे टू संडे। इस टाइम पे मैं इलाहाबाद हूँ तो यहाँ पे तो नहीं भी कर रहा। ओके जी, ऑनलाइन में क्लास है और ऑफलाइन में जी? ऑफलाइन ही कर रहा था यहाँ पे भी, लेकिन अभी ऑनलाइन अक्टूबर नवंबर में शुरू करने वाला। ओके, अच्छा, सो दिस इज पेपर टेप एंड दिस इज मेथी, हाँ। तो अभी मेथी की स्ट्रिप कहीं लगानी है, मान लीजिए तो ये हमारा थंब है, हाँ। अगर थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस है तो इधर, अगर नेक में पेन है तो इधर, ठीक है, ये हिस्सा, क्योंकि ये मेरे हेड के पीछे का है और जस्ट इसके नीचे, गर्दन के नीचे से यहाँ तक का इन्फ्लेमेशन है जो हाथों में जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे पेपर टेप से चिपका लिया ऐसे, ये पहले मेथी को स्प्रेड किया टेबल पे,
या ट्रे पे टेप को ऐसे इस पे चिपकाया और ऐसे हमने थंब पे रैप किया, ठीक है। इसको Okay. हम और दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक। ये बंदी रहने दी, कोशिश करेंगे कि इसको हम दोबारा ना बनाएं, 8-10 घंटे बंदी रहने दें, फिर थ्रो कर दी, है ना। देन अगेन न्यू बनानी है, इसको वापस से नहीं लगाना है। इसी तरह काली मिर्च के दाने यहाँ पे टेप कर लिए, हाँ। इसी तरह ये जो हमारा बैक है, तो समटाइम्स सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में, सर्वाइकल में। फिर अगेन जो नेजल लीकेज होता है, तो यहाँ पर सेंटर में जो नोज का एरिया है उस पे काली मिर्च एक ब्लैक पेपर एक लगा दिया, उससे भी बहुत फायदा, ठीक। सेकेंडली यहाँ पर बैक में मटर के दाने, है ना। तो ये अगर ये 2 पैर हैं तो ये हमारा टेल बोन हो गया, और टेल बोन से नीचे जाएंगे तो ये हमारा थोड़ी से और नीचे, तो कमर का L4 L5 हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 4 होल मटर चिपकाने से और उनको दबाने से आराम मिलता है, ठीक है। तो ये बैक नेक वाला, बैक लंबर वाला एरिया आ गया हमारा, हाँ। और ये सर्वाइकल वाला एरिया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है। तो जब हम मसाज कराते हैं तो द थिंग इज कि ऐसे कराने पे पैनिक होता है, किसी को भी हम ऐसे ही करा रहे हैं तो वो एक्यूप्रेशर है, ठीक है, फायदा होता है। पर जब आप द काइंड ऑफ मसाज शुरू करते हैं तो आप जब ऑयल के साथ ऐसे, पता भी है आपको, और आप किसी को ऐसे टेक्निक से मसाज कर रहे हैं तो उसको एक गुड फील आता है। एक तो मैन हीलिंग है ना, पर्सनल एक अटैचमेंट है, दूसरा मसाज का एक अपना प्रभाव है। तो हमने पूरी बॉडी की मसाज को पहले एक्यूप्रेशर कराएंगे हम, हाथों का, पैरों का, स्पाइन का और फिर हेड का, ठीक है। और फिर उसके साथ हम फिर 15-20 मिनट ऑयल मसाज, देन स्टीम बाथ और आइदर मड बाथ। जैसे गर्मियों में आप इतनी मसाज के बाद फिर मड बाथ एडवाइस कर देती हूँ, ठीक है। और ठंडियों में आप फिर उसके बाद स्टीम बाथ ले लें, है ना। सो ये इस तरीके से अभी मैं देख लेती हूँ, अगर स्लाइड शेयर हो जाती है तो अभी दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं इसमें सेव करके रखूंगी, फिर कल आपको दिखाऊंगी। बताएं। One doubt, Ji, you made that methi patti. How many hours we have to do put that patti, Ji? Minimum 8 hours. 8 hours. Okay. And these are the knee. This is also effective. ये both legs हैं, तो legs का mid joint is knee. तो ये both knees में भी आप इस तरह की मेथी की पट्टी बांध सकते हैं, है ना। तो इनिशियल अगर इन्फ्लेमेशन है तो जरूर आराम मिलेगा, है ना। जब क्रॉनिक है तो आप ये भी करो, फर्मेंटेशन भी करो, एक्सरसाइज भी कराओ, स्ट्रेचिंग भी, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या है, नहीं तो फिर कल हम इसकी सारे एक्युमुलेट करके फिर आपको दिखाते हैं चीजें। शेयरिंग आपको क्या दिख रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? नहीं, अभी नहीं शो रही। Only visible, Ji. Screen is not coming, Ji. चलिए कल पढ़ते हैं, कल सारी स्लाइड्स ही दिखाएंगे, ठीक है। काफी कुछ ब्रीफ हो गया है, तो मसाजेस की स्लाइड्स ही दिखाएंगे आपको, ठीक है। Okay. ओके, थैंक यू। सो अभी हम पीपीटी जितनी भी है आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। Okay. सो प्लीज गो थ्रू, ठीक है। थैंक यू। Thank you, Ji. Thank you. Bye.